Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So this is Sarvan sir in front of you. I am your biology teacher. So let's start. First of all, class 12th biology course structure theory. First of all, I want to share you one information. In this session, CBSE has decided to reduce approx 30% of your course structure or syllabus. So you can see that here I am going to discuss your complete syllabus of 12th biology. Better you see here. First of all, I want to share you with this. This is the theory portion having maximum 70 marks and timing 3 hours. After this theory portion, I will discuss you the practical also. So first of all, let's start about theory portion. What are the portion remaining and what are the deleted portion? So see students, in here 12th biology there are 5 units. Units number 6, 7, 8, 9 and 10. The name of unit 6 is reproduction, having 14 marks questions. Whereas unit 7, the name of unit 7 is genetics and evolution, having 18 marks questions. Now unit 8, biology and human welfare, having 14 marks, and then unit 9, biotechnology and its application, having 12 marks, and finally last unit number 10, ecology and environment, having 12 marks. So these are the marks allotted to you, and this is total 70 marks theory paper and 30 marks practical paper. So both are concluded as a 100 marks paper. So now start students about unit 6. What portions remaining and what are deleted? As you know about this unit 6 reproduction, in which there are 4 chapters. So as you see, I written over there the name of the chapter. The chapter 1 is reproduction in organism. Then chapter number 2, sexual reproduction in organism. Sexual reproduction in flowering plants. Then chapter 3, human reproduction. And now chapter 4, reproductive health. So students, in this first unit, reproduction, as you see here, the name of chapter, there are 4 chapters: reproduction in organism, sexual reproduction in flowering plants, then human reproduction and then reproductive health. तो जैसा कि सीबीएसई ने पोर्शन डिलीट किया है, इसमें से चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इज डिलीटेड and the remaining 3 chapter 2, chapter 3 and chapter 4 as usual. तो हम लोगों को यहाँ पे रिप्रोडक्शन यूनिट में 3 चैप्टर पढ़ना है: सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को नहीं पढ़ना है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट 7, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, कंटेन 18 मार्क्स, इन विच वी हैव टू स्टडी अबाउट चैप्टर 5, principle of inheritance and variation. Inheritance and variation. This is the name of chapter 5.
Now chapter 6, molecular basis of inheritance. Molecular basis of inheritance, and the name of chapter 7 is evolution. तो बच्चों इस यूनिट में, यूनिट 7 में जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में आपको जेनेटिक्स के दो चैप्टर, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 को पढ़ना है। वहीं यूनिट इवोल्यूशन से चैप्टर 7 इवोल्यूशन को नहीं पढ़ना है, इसको हटा दिया गया है, इसको डिलीट कर दिया गया आपके पोर्शन से। तो अभी तक आपने देखा यूनिट 6 रिप्रोडक्शन में चैप्टर नंबर 1, यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में चैप्टर नंबर 7, ये दो चैप्टर आपको हटा दिया गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट 8, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जो कि 14 नंबर का है। और इसमें कितना पोर्शन पढ़ना है और किसको हटाया गया है। See students, biology in human welfare having 3 chapters. Chapter number 8, human health and diseases. Human health and diseases. Then chapter 9, strategy for enhancement in food production, and chapter number 10 is microbes in human welfare. तो बच्चों जैसा आप देख रहे हैं यूनिट 1 में बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में 3 चैप्टर हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन को सीबीएसई ने इस बार आपके पोर्शन से हटा दिया है। आपको सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 8 और चैप्टर नंबर 10। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 9, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इस चैप्टर में, इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर 12। चैप्टर 11 का नाम है बायोटेक्नोलॉजी, इट्स प्रिंसिपल एंड बायोटेक्नोलॉजी, इट्स प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। और वही चैप्टर 12 का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो मैं आपको बताऊं बच्चों, इस यूनिट में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में 2 चैप्टर हैं और इन 2 चैप्टर से 12 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं और दोनों चैप्टर को आपके क्वेश्चन में रखा गया है, किसी भी चैप्टर को हटाया नहीं गया है। तो आपको यूनिट 9 को फुल चैप्टर पढ़ना है। अब हम बात करते हैं लास्ट यूनिट, यूनिट 10, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, और यहाँ से भी 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से बच्चों आप देखिए इसमें 4 चैप्टर है, देयर आर 4 चैप्टर इन दिस यूनिट, लास्ट यूनिट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। अगर हम बात करें चैप्टर्स की तो चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम, चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड
its conservation, and the last chapter, chapter number 16, environmental issues। बच्चों ये 4 चैप्टर हैं आपके, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, और लास्ट है इन्वायरमेंटल इशू। तो इसमें से आपको चैप्टर 14 और चैप्टर 16, 2 चैप्टर, इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंटल इशू, 2 चैप्टर को हटाया गया है, डिलीट किया गया है। पढ़ना किसको है? चैप्टर 13 को और चैप्टर 15 को। तो इस तरह से अगर हम देखें तो लास्ट यूनिट से, यूनिट 10 से 2 चैप्टर आपको पढ़ना है और 2 चैप्टर को डिलीट किया गया है। थोड़ा सा आप अच्छे से देख लीजिए, नीचे की तरफ मैं कैमरा कर दे रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे ये चैप्टर हैं, चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15 और चैप्टर 16। चैप्टर 13 आपको पढ़ना है, चैप्टर 15 आपको पढ़ना है और चैप्टर 14 और चैप्टर 16 को नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से अगर हम देखें 12th बायोलॉजी के होल कोर्स स्ट्रक्चर को, इसमें आपको टोटल 16 चैप्टर हैं एनसीईआरटी बुक में। 16 चैप्टर में से 5 चैप्टर माइनस हो गया है। आप एक बार रिवाइज करिए पूरे यूनिट को, तो आप पाएंगे कि 5 चैप्टर को पूरे पोर्शन से डिलीट कर दिया गया है। डिलीट करने के बाद 11 चैप्टर बचते हैं और इसी 11 चैप्टर को आपको इस साल सेशन 2021 में पढ़ना है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। एक बार और मैं शॉर्ट में बता दूं, रिप्रोडक्शन यूनिट से चैप्टर 1 को डिलीट किया गया है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यूनिट से इवोल्यूशन चैप्टर 7 को डिलीट किया गया था, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर यूनिट से चैप्टर 9 स्ट्रेटजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन को डिलीट किया गया है, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से कुछ भी नहीं डिलीट किया गया है, और लास्ट यूनिट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से इकोसिस्टम और इन्वायरमेंटल इशू को, ये 2 चैप्टर को डिलीट किया गया है। तो इस तरह से देयर आर 5 चैप्टर्स रिड्यूस इन योर सिलेबस विच इज अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ योर होल पोर्शन। और एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए बच्चों, 044 मैंने लिखा हुआ है, 044 बायोलॉजी का कोड होता है और इसी कोड पेपर में पेपर आते हैं। तो फाइनली आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे, जो भी हमारा टॉपिक है जो सीबीएसई ने इस बार रखा हुआ है उसको हम शुरू करेंगे और आगे देखते हैं। चलिए, थैंक यू।